Right. So Rolle's theorem. What exactly? Let's understand first. See what he told. If any curve is continuous and differentiable inside an interval, some interval, maybe a and b here. If it's continuous and differentiable between a and b, then no need of writing. First understand, after that we'll write the theorem exactly. Between a and b, function is continuous as well as differentiable, both is there. And f of a value equal to f of b. These two values are same. Means from here when the graph go up or down, I don't know. But finally it has to reach here. See, if graph, suppose, imagine, graph is going up, it has to come back to here. So how it can come back here? Either it has to break and then come, but that is not possible because I am saying it's a continuous function. So another possibility is that it can come back like this. That is also not possible because sharp point is developing. Sharp point is the means point of non-differentiability. So that is also not possible. 100% sure it has to take a turn and then come. And if taking turn, this way the turn, so surely there will be maxima or maybe minima will form. So if maxima and minima forming without sharp point, be clear, without sharp point, so surely there will be a tangent where the slope of tangent will be 0. Slope of this tangent will be 0. Means there will be a point C in between, at least one point C in between where f dash x will be 0. So this, if Rolle's is not telling, then also we can understand. If any graph is going, starting from, suppose from this boundary line, graph is starting. I am saying that graph has to come back to this boundary line again. So, and without discontinuity, without sharp point. So only option is that it has to take turn like this, and then it will come back to this point. So in between these 2 points, there will be surely at least one maxima and at least one minima will form. At least one maxima or at least one minima or both. So wherever maxima and minima is going to be formed, there will be first derivative will be 0. First derivative will be 0 because it's not sharp point. Sharp point cannot come. So f dash x will be equal to 0. This is the meaning of the Rolle's theorem. Nothing else. Of course, it's a very simple looking, but its application is very high. So what with this Rolle's theorem said, that's we'll write it in a term wise. So write down, if fx satisfy following condition, satisfy following condition. First, f is continuous in A to B. Second, f is differentiable in A to B. Just note these 2 points carefully. It should be continuous between A and B, but at A also it should be continuous. Means at A it should not have jump discontinuity. Means continuity you have to check including A and B, but differentiability just in between. At extreme we don't have to check. And third condition, fa is equal to f of b. If these 2 conditions satisfy, then it's necessary that there will be at least one value of C, small c, one value of C element of open A to B, where f dash C equal to 0. Is this clear to everybody? If 3 conditions satisfy, then surely there will be at least one value of C where f dash C equal to 0. Remember, if the Rolle's theorem is not valid, it doesn't mean that f dash x will not be 0. It may be 0. But if the Rolle's theorem valid, then 100% this will be true.
For example, suppose if I say, look this graph carefully, everybody. This is the 1, this is the 5. Here graph is going and taking turn and coming back like this way. Between 1 and 5, Rolle's theorem is not valid. But there is a point where between 1 and 5, one point is there where f dash x is 0. So f dash x equal to 0 in between 2 points, it doesn't mean that Rolle's theorem has to be valid. But if Rolle's theorem valid, so this will be compulsory. 100% this point will be there. Are you able to understand the point what I am saying? Here, between 1 and 5, Rolle's theorem not valid. Why not valid? Because f of 1 is not equal to f of 5. Easily you can see f of 5 is bigger than the f of 1. Are you able to understand? So, but still, there is the point where the f dash x will be 0. Correct? You may ask, sir, then why, how it's happening? Yes, you can extend this. So there is some point here a, which I don't know how much, but f of a equal to f of 5, and it's continuous and differentiable in between. That's why it's a there is the point c is coming where f dash x equal to 0. So Rolle's theorem meaning is this much only. These 3 conditions has to satisfy. Please make sure it should be continuous between a and b, including a and including b. That is the compulsory. I hope all of you wrote it. Can I go ahead? Look this graph, everyone. One, anything, let's say 5. Let's say this is 10. Let's say this is a 2. And here 1 point. Check, watch carefully, everybody. If I ask you, what is f of 1? 10. Wait, f of 1, here is the point is given, 10. And f of 5, that is also 10. Is the function differentiable between 1 and 5? Yes. Differentiable between 1 and 5? Yes. Is it continuous between 1 and 5? Yes, it's continuous between 1 and 5. But still its Rolle's theorem is not valid. Why? Because this is having jump discontinuity at x equal to 1. Can you see this point or not? So that's why I am saying close bracket, try to understand. Why the close bracket matter? Because f of a equal to f of b, yes, it may be true. Differentiable in a to b, in x a to b, that is also may be true. Continuous in x a to b open, that is also true. But all 3 condition is true, then also Rolle's theorem may not be valid. This is the correct example of this. So continuity always make sure that it should be continuous at the extreme point at a and b also. That is the compulsory. So this figure and this example you can give it while revision. You will not get confused why I said that open bracket, why close bracket. That's the very important condition. Simple question. Fx equal to sin x if x lie between 0 and pi. Is the Rolle's theorem valid? Don't touch pen, paper, oral, try to visualize the graph and tell. Is the Rolle's theorem valid between 0 and pi? Answer, respond everybody. Is the Rolle's theorem valid between 0 and pi?
Yes. First condition कि भाई is it continuous between 0 and pi 100%? Is it differentiable between 0 and pi 100%? Sinus is differentiable function. Is the f of 0 equal to f of pi? Yes. Okay. So if it's valid, there will be Rolle's point. What is the Rolle's point for this? The Rolle's point will be c equal to, graphically, no need of calculation, c equal to pi by 2. Am I right? At pi by 2, it's taking turn. And point of maxima and minima only, nothing else. So between 0 and pi, I'm not using the calculation. I'm doing basically by graph. This is the situation. This point is 0, this point is pi. Between 0 pi continuous, between 0 and pi differentiable, at 0 also continuous, at pi also continuous, f of 0 equal to f of pi, so there will be at least one Rolle's point. C is called as the Rolle's point. Rolle's point. Here is the only one Rolle's point, and that is the C equal to pi by 2. Means pi. You can do this by using analytical calculation also. We check that it's valid, so I will put f dash c equal to 0. So f dash c will be how much? F dash x will be cos x, so cos c equal to 0. Cos c equal to 0 having infinite number of solution, but we have to take solution only which is between 0 and pi. So between 0 and pi, cos c will be 0 when c equal to pi by 2. So this way also you can do calculation. Is it clear to everybody? Okay. Watch it. Fx equal to 5 for x lie between 0 to 1. Is the Rolle's theorem valid? Yes or no? Respond everybody. Is the Rolle's theorem valid between 0 and 1? Yes or no? Respond quickly. Simply you have to type answer, that's all. Yes or no you have to type. You don't have to solve. Yes or no, everybody respond, don't sleep. In the evening time, sleeping is not allowed. Only night time we should sleep. Let's verify. First condition. Is it continuous? Constant function is always continuous function. Is it differentiable? Always differentiable. Is the f of 0 how much? F of 0, f of anything is 5. F of 0, 5. F of 1 also 5. All three conditions satisfied. So it's a differentiable. Rolle's theorem valid. How many Rolle's point? Infinite number of Rolle's point. Why so? Because between 0 and 1, this is the graph of y equal to fx. Fx equal to 5. This is your 0, this is your 1. Between 0 and 1, there is the infinite point where f dash x will be 0. So there will be infinite number of Rolle's point will come. Every point between 0 and 1 is a Rolle's point where f dash x will be equal to 0. So every constant function, easily you can remember, every constant function always obey the Rolle's theorem between any 2 points. Between any 2 points, every constant function obey the Rolle's theorem. Correct. Next, tell me fx equal to mod of x minus 2 if x lie between 0 and 3. Is the Rolle's theorem valid? Yes or no? Mod of x minus 2, x lie between 0 and 3. Everybody speak the answer quickly. This much time don't take here. Time is not there. Between 0 and 3, everybody not valid. Who will check? I'm not going to check also.
mod fx non-differentiable wherever fx 0. Mod fx non-differentiable wherever fx 0 we discussed in differentiability properly. So mod of x minus 2 non-differentiable at x equal to 2, and 2 is the in between. 2 is the in between. That's why it's the not Rolle's theorem not at all valid. Rolle's theorem not valid. और देखो fx equal to 3 plus x minus 2 to the power 2 by 3 a in x element of 1 to 3. Quickly everybody. Rolle's theorem valid or not? If it's valid, then Rolle's point is what? Little bit faster, everybody have to go. Speed, increase the speed. JEE is coming soon. अरे इतना काहे को सोचना भाई. छोटा सा क्वेश्चन है यार. भाई कुछ लोग इमेजनरी सोच रहे हैं. याद रखिएगा कि -1 पावर 1/3 इमेजनरी नहीं होता है, ये -1 होता है. -1 पावर 1/3 अगर आपके दिमाग में ये आ रहा कि इमेजनरी है तो इमेजनरी नहीं होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है बेटा. अरे वाह यार, तुम लोग थोड़ा सा भी क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं. ये तो अभी डेफिनेशन सिखा रहा हूं, इतना टाइम लगा दे रहा हूं. चलो देखो इधर. पहला कंडीशन क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए 1 से 3 के बीच में. अरे फंक्शन तो पॉलिनोमियल टाइप का है, पॉलिनोमियल नहीं है बट फिर भी पॉलिनोमियल. इसके जो है डिसकॉन्टिन्यूअस होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा. इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है तो बिटवीन 1 and 3 तो ये पूरी तरह कॉन्टिन्यूअस होगा. डिफरेंशिएबल है कि नहीं 1 to 3 के बीच में? ये सोचने वाली बात है. कैसे चेक करें? क्या पूरी तरह डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें? नहीं. अरे मैंने आपको तरीका बताया था ना, कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो चुपचाप डिफरेंशिएट कर दो. अगर सिंगल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करो. f' इक्वल टू 3 का डिफरेंशिएशन 0 2/3. अरे याद है ना डिफरेंशिएशन की? भूल गया सब लोग. x - 2 पावर -1/3. ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया. 2 पे शार्प ग्राफ बनाएगा. याद नहीं है? मैं डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया था ना कि जब भी सिंगल फंक्शन हो तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए चुपचाप डिफरेंशिएट कर दो. तो डिफरेंशिएट किया तो हमें दिख रहा है कि x = 2 पे ये नॉट डिफाइन हो गया, तो मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है. 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो रोल्स थ्योरम नॉट वैलिड. रोल्स थ्योरम नॉट वैलिड. क्यों? क्योंकि 2 इन बिटवीन है. कुछ बात समझ में आ रही है आप लोग को? वैसे ये क्वेश्चन पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है, बट ऐसे पूछ ले रहा हूं टाइम पास के लिए. जल्दी से आंसर लिख दो कट से, यस नो. जल्दी फास्ट है. रोल्स थ्योरम वैलिड. कुछ लोग लिख रहे हैं वैलिड. रोल्स थ्योरम वैलिड है ये.
अरे भाई सो मत यार, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसे आंसर दोगे आप लोग तो। मैं तो ये पूछने वाला भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। जो लोग वैलिड बोल रहे हैं वो उसे खुद अपने आप को मारना चाहिए। अरे x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा भाई, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, तो ये नॉट वैलिड। निकालने की जरूरत ही नहीं है, काहे को निकालेंगे, 0 पे नॉन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया ना। कुछ लोग तो कोई बात नहीं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इन एक्स एलिमेंट ऑफ -1 to 1। जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी फास्ट। नहीं -1 to 1 में तो हाँ बोल दो। सॉल्व मत करो, सॉल्व मत करो, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं है। यहां पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एफ ऑफ -1 है, एफ ऑफ 1 है, ये दोनों की वैल्यू ही डिफरेंट है, तो फिर हम पहले तो आप ये चेक कर लिया करो कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 क्या है। अगर वो दोनों इक्वल है तो फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करो, कॉन्टिन्यूटी भी सही है तो फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। ऐसे प्रोसीजर है, क्योंकि सबसे इजी है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करना, तो वो हमेशा इसलिए चेक कर लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी केवल छोटे ये क्वेश्चन, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये टॉपिक बच्चे जो है छोड़ देते हैं। और बिलीव कीजिए किसके क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन आराम से होते हैं, बहुत छोटा होता है, बट जनरली इस पर स्ट्रेस नहीं देते हैं लोग, इसलिए इसको छोड़ के चल देते हैं। तो उसको नहीं करने का, इसकी एप्लीकेशन ध्यान से करके करने का। 4x + 5 नोट कीजिए, इफ x लाई बिटवीन 0 and 1। देखता हूँ क्वेश्चन सही लिख रहा हूँ मैं। हाँ, 2x - 3 इफ x लाई बिटवीन 1 and 2। चेक कीजिए रोल्स थ्योरम बिटवीन 0 and 1, 0 and 2, 0 और 2 के बीच में रोल्स थ्योरम जल्दी चेक कीजिए वैलिड है कि नहीं। नॉट वैलिड। अच्छा देखते हैं, एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है 5, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है -1। ये तो ये वैलिड ही नहीं है। मैंने सोचा कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा, करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ई पावर माइनस मॉड एक्स -1/2 इन -2 to 2। इसे चेक कीजिए, जल्दी चेक कीजिए। हो गया। चलिए देखते हैं। देखते क्या है, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। यहां पे मॉड एक्स है, मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है किस पे, 0 पे, और 0 इसके बीच में है, आगे चेक ही नहीं करूंगा। बात समझ आ रही है आप लोग को? हाँ। तो ये तो छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस हो गए।
थोड़े और बच्चों वाले कर लेते हैं, फिर जो है जेई के क्वेश्चन करेंगे इस पे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए रेस पावर एम एक्स माइनस बी रेस पावर एन, where m n belongs to positive integer, then check in a to b। अगर ये वैलिड है तो रोज पॉइंट लिख लीजिएगा। हमारे आंसर नहीं दे पाएंगे बट फिर भी आपको रोज पॉइंट पता होना चाहिए। वैलिड आर नॉट। चलिए पहले वैलिडिटी चेक करते हैं। एफ ऑफ ए हमारा 0 आ गया और वही एफ ऑफ बी हो गया, क्योंकि दोनों ही 0 हो जाएंगे। ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, रोल्स थ्योरम वैलिड है। अब हमें रोल्स पॉइंट पता करना है। रोल्स पॉइंट कैसे पता करते हैं? एफ डैश एक्स पता करते हैं पहले। एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस ए पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी पावर n प्लस u इंटू वी मैथड अप्लाई कर रहा हूं, n इंटू एक्स माइनस ए पावर m इंटू एक्स माइनस बी पावर n माइनस 1। यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं x माइनस ए पावर m माइनस 1 और x माइनस बी पावर n माइनस 1, और बचेगा क्या आपका यहां पे mx माइनस एम बी प्लस nx माइनस na। तो एफ डैश एक्स हमारे पास, एफ डैश सी हमें चाहिए एक्चुअली। एफ डैश सी हमारा हो जाएगा सी माइनस ए पावर m माइनस 1 सी माइनस बी पावर n माइनस 1, और यहां पे आपका आ जाएगा ये mx ये nx, हाँ, और m प्लस n इंटू एक्स माइनस एम बी प्लस एन ए। ये आ गया, x नहीं c, सॉरी c। एफ डैश सी हमें चाहिए होता, ये इक्वल टू 0 पुट करना है, क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिया कि रोल्स थ्योरम वैलिड है, तो रोल्स पॉइंट अब हमें निकालना है, तो इक्वल टू 0 पुट किया। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब जब आप 0 पुट करेंगे तो कब 0 हो जाए, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये ब्रैकेट 0 हो। ये 0 होगा वो मैं रिजेक्ट करूंगा क्योंकि सी की वैल्यू ए आएगी। याद रखिएगा रोल्स पॉइंट कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होती है, वो हमेशा ए और बी के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो c इक्वल टू ए नहीं हो सकता, c इक्वल टू बी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये जब 0 होगा तो c वैल्यू आएगा एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। कुछ लोग ये सोच सकते हैं, ठीक है, ये रोल्स पॉइंट आ गया। कितने लोग आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट दिस रोल्स पॉइंट? ओके, बट कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर आप कैसे जानते हो कि ये जो है ए और बी के बीच में लाई करेगा? भाई कंडीशन तो ये होना चाहिए ना कि ये ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। मैंने अभी बताया, आराम से बोल सकता हूं। याद देखिए, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए। ये एक इंटरनल डिवीजन पॉइंट है ए और बी का। इंटरनल डिवीजन पॉइंट उसके बीच में होता है हमेशा। ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट है कि नहीं है? तो इसका मतलब 100% ये जो है बीच में ही लाई करेगा। तो ये इसीलिए इसका ये रोल्स पॉइंट हो गया। इज दिस क्लियर? तो रोल्स पॉइंट कभी भी बताना रहे आपको तो ऐसे बता सकते हैं। याद रखिएगा जी, कंसेप्ट के क्लियरिटी ध्यान रखिए। रोल्स पॉइंट अगर आप ए और बी के बीच में पता कर रहे हैं तो रोल्स पॉइंट ए और बी नहीं हो सकता, वो हमेशा इसके बीच का पॉइंट होता है। इसलिए मैंने c इक्वल टू ए नहीं पुट किया, c इक्वल टू बी भी नहीं हुआ, c इक्वल टू यही पॉइंट होगा। और देखिए, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x फॉर x लाई बिटवीन क्लोज 0 टू π/2। जल्दी से बताइए, अगर वैलिड है तो रोल्स पॉइंट फटाक से।
इफ इट्स वैलिड देन फाइंड द रोज पॉइंट. जल्दी करो यार, फास्ट, इतना टाइम नहीं है. हो गया? नहीं वैलिड है? कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं वैलिड है. वैलिड है, ठीक है. रोज पॉइंट क्या है जल्दी बताओ, इतना टाइम लगाते हो तुम लोग. ठीक है, पाई बाई 4 होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे उम्मीद है. F0 0 सॉरी 1, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 0. F पाई बाई 2 1, पहला कंडीशन सेटिस्फाई. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ साइन और कॉस है. साइन और कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं. साइन, कॉस और पॉलिनोमियल फंक्शन, उसमें कभी सोचने की जरूरत नहीं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है. तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई है. सीधे हमें एफ डैश सी पता करना है, तो एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 4 साइन क्यूब सी इंटू कॉस सी प्लस माइनस 4 कॉस क्यूब सी साइन सी. यहां से हम 4 साइन सी और कॉस सी बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाए माइनस, ले लेते हैं माइनस, तो कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी आ जाएगा. कॉस सी माइनस साइन स्क्वायर सी होता है आपका कॉस 2c, और ये हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी, तो साइन 2c, फिर 2 साइन 2c कॉस सी हो जाएगा माइनस साइन 4c. मेरे ख्याल से ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को समझ में आ गया होगा. इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए. तो साइन 4c 0 कब होगा? जब 4c आपका जो है इवन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई हो. तो हम सिर्फ पुट पाई करेंगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 4. ये इसमें लाई कर रहा है, इसलिए ये इसका रोल्स पॉइंट है. डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए आप लोग, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं. इफ द रोल्स पॉइंट ऑफ fx इक्वल टू 2x into x minus 3 power n, where n belongs to natural number, in on 0 to 3 is 3 by 4, then find n. मतलब इस फंक्शन का रोल्स पॉइंट इस इंटरवल में 3 by 4 है, तो n की वैल्यू आपको पता करना है. जल्दी कर दीजिए.
ट्राई करते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया। एफ डैश, ये रोल्स थ्योरम ऑलरेडी वैलिड है, तभी तो रोल्स पॉइंट आ रहा है। तो एफ डैश सी निकालते हैं, उसको 0 पुट कर देते हैं और सी की वैल्यू 3/4 पुट कर देंगे। एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 पावर एन, एफ डैश एक्स वाले निकालते हैं, एफ डैश एक्स प्लस 2x इंटू एन इंटू एक्स माइनस 3 पावर एन माइनस 1, राइट। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, c माइनस 3 पावर n माइनस 1 कॉमन, और यहां पे बचेगा c माइनस 3, ये 2 चला गया, ये प्लस c और ये n। कैलकुलेशन ठीक किया मैंने, 2 चला गया, c है cn, यस, इक्वल टू 0। मीन्स 2 इंटू सी माइनस 3 पावर n माइनस 1 प्लस c इंटू एन प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब साफ सी बात है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/n प्लस 1। तो 3/n प्लस 1 ऑलरेडी दिया है 3/4, 3 बाय n इक्वल टू 3, दिस आंसर। समझ में आई बात? कुछ नहीं किया है यार, एफ डैश सी निकाला, उसको 0 पुट किया, यहां से सी की वैल्यू निकाल दिया, सी की वैल्यू ये आ गई 3/n प्लस 1, बट सी की वैल्यू 3/4 ऑलरेडी है, पुट कर दिया, कंपेयर कर दिया, आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए ये जेई 2004 का क्वेश्चन देखिए, नहीं, सॉल्व कीजिए। इफ fx is equal to x power alpha ln x and f0 equal to 0, then the value of alpha for which Rolle's theorem can be applied to 0 to 1 is, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा क्योंकि ऑप्शन चाहिए, -2, -1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 1/2। बड़ा जल्दी कर लिया भाई कुछ लोगों ने, मैं तो डर गया। और कोई भाई? ठीक है, कभी कभी तुक्का काम कर जाता है। चलो करते हैं, डरने का नहीं। हमें 0 और 1 के बीच में चेक करना है कि रोल्स थ्योरम वैलिड है, मतलब ये बोलना वैलिड है, चेक नहीं करना है, वैलिड है, आपको अल्फा को बताना है। ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग बात, ठीक है भाई, ऑलरेडी वैलिड है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन f(0) f(1) के बराबर होना चाहिए। क्या है चेक करते हैं। f(0) तो ऑलरेडी 0 दिया है, ठीक है, f(1) 0 हो जाएगा क्योंकि 1 अगर आप यहां पुट करेंगे, देखिए f(0) यहां नहीं पुट करेंगे आप क्योंकि इसने f(0) के लिए अलग से दिया है, तो f(1) अगर यहां पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब पहला कंडीशन हैप्पी सेटिस्फाई है। दूसरे कंडीशन पे आते हैं।
दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि ये फंक्शन 0 और 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, बस यही आ गए। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। 0 और 1 के बीच में हमें बीच में तो कॉन्टिन्यूअस है भाई, उसमें कोई डाउट मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब 0 और 1 के बीच में आप देखेंगे तो कहीं पर भी नॉट डिफाइंड का सिचुएशन नहीं आ रहा है। भाई ये किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? सिंगल फंक्शन हो अगर तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? अगर सिंगल फंक्शन है तो साफ सी बात है, अगर कहीं पे डिफाइन ऑलवेज डिफाइन है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये तो 0 और 1 के बीच में हमेशा डिफाइन है, 0 1 के बीच में डिफाइन है। अब हमें चेक करना है 0 पे कहीं जंप डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है और 1 पे डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो उसके लिए आप जरा ध्यान दीजिए, ये जस्ट आफ्टर 0 वैल्यू क्या होगी इसकी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 0। यहां पे जस्ट आफ्टर 0 वैल्यू क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x पावर अल्फा ln x। ये वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका भाई राइट हैंड लिमिट ही रहेगा सिर्फ, तो राइट हैंड लिमिट जो है f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। प्लीज कंसंट्रेट। ये तभी हो सकता, मतलब 0 के इक्वल तभी हो सकता है जब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ना जाए। अगर हमने -2 पुट किया, इसलिए ऑप्शन मैंने दिया था आपको, अगर मैंने -2 पुट किया तो ये ऐसे हो जाएगा ln x बाई एक्स स्क्वायर। सोचो x 0 की तरफ अप्रोच करे तो क्या होगा? ln x माइनस इन्फिनिटी जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो ये इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगा। -1 तब भी नहीं होगा। अगर आपने 0 पुट कर दिया तब तो एकदम नहीं होगा। अल्फा अगर 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एक्स, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। बात समझ आई? हां, अगर आपने अल्फा को हाफ पुट किया तब हैप्पी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 रूट x इंटू ln x, रूट x इंटू ln x। x अप्रोचेस 0, ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है नो डाउट, बट ये तो 0 की तरफ जा रहा है। 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, मतलब तब ये कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे लग रहा है कुछ लोग को समझ में नहीं आए। इज एवरीबडी अंडरस्टूड? याद रखिए, अगर x मल्टीप्लिकेशन में है तभी तो वो 0 बनेगा। और अगर ऐसा सपोज कर लीजिए ग्राफ ये वाला हुआ, आपने माना कि चलो सर अल्फा इक्वल टू -2 पे दिखाओ कि ये कैसे नहीं है। अल्फा इक्वल टू -2 पे क्या होगा? जस्ट आफ्टर 0 ग्राफ यहां पे कहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी पे ऐसे जाएगा, ऐसे ये 1 तक ऐसे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सेपरेट बना रहा हूं, ऐसे जाएगा जाके 1 पे तो 0 होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। 1 पे 0 हो गया और ये नियर टू 0 माइनस इन्फिनिटी और 0 पे 0 हो गया क्योंकि ये दिया है f0 इक्वल टू 0। तो ये तो साफ सी बात है, इस पे 0 पे जंप डिसकंटिन्यूटी आ गया। हमें इसको रोकना है, उसके लिए इस x को प्रिजर्व रखना है न्यूमिनेटर में, और x न्यूमिनेटर में तभी रहेगा जब अल्फा जो है आपका पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट अगर ये 1/3 होता तब भी यही आंसर होता, अगर ये 2 होता तब भी यही आंसर होता। बात समझ आ रही नहीं? इस क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हैं, 1/2, यहां पे 5, यहां पे 4, ये सारे करेक्ट हो गए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो सिंपल सा कंसेप्ट था। देखिए सिंपल से कंसेप्ट को क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, बट उसमें कितनी चीजें अप्लाई कर दिया, लिमिट भी अप्लाई कर दिया इसके अंदर जो है आपका रोल्स थ्योरम तो एज इट इज एप्लीकेबल है ही, तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी दोनों अप्लाई करके क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो जेई के जब भी जेई एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी एक चैप्टर से नहीं आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जेई मेन एंड जेई एडवांस। दोनों के लेवल में मैं ज्यादा फर्क नहीं मानता, मैं सिर्फ एक ही चीज का फर्क मानता हूं। कभी भी जेई एडवांस जो क्वेश्चन हो, कई सारे चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और जेई मेन में उसी चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दिस द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस। ये रोल्स थ्योरम था, इसका एप्लीकेशन देखना है, दैट इज द विल सी विद द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नॉट टुडे।
So in the next class, we'll do the Lagrangian mean value theorem and application of the mean value theorem. So that will be get over in the next class.